Hello everyone. In today's class, we will understand the concept of production possibility curve, or famously known as PPC. So, we all know that in any economy, there is scarcity of resources, and the resources also have alternative uses. What does alternative uses means? Alternative uses means resource can be used for more than one use. It has multiple uses. For example, milk. Milk can be used for direct consumption like drinking, or it can be used to make tea or coffee, or to produce paneer, curd, cheese, etc. So there is one resource and it is being used in more than one uses. So we know that resources are limited, they have alternative uses, and the human wants are unlimited. And this imbalance between the limited resources having alternative uses and or unlimited human wants creates the problem of choice. What is problem of choice? That we have to choose between these multiple uses of the resource as they are limited in nature. So let's take an case study or a scenario to understand the concept of production possibility curve. Let's assume in our economy we are producing only two goods, that is guns and butter. This is a classic NCRT example. And why are we choosing guns and butter only? Guns here somehow represent the military goods produced by a country. Okay. And the butter here represents the civilian goods produced by a country. What are civilian goods? The normal goods that you and me, you and I consume, like food, clothing, shelter, and everything else. School, education, health, etc. Okay. So the economy is producing two goods. Since we know the resources are limited in nature, okay, तो हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से सारी की सारी यूज करके सारे रिसोर्सेज यूज करके हम सिर्फ गन और बटर ही प्रोड्यूस करेंगे. सपोज हम सारे रिसोर्सेज सिर्फ गन्स के प्रोडक्शन में ही लगा देते हैं, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस 10 guns and zero butter. बट इन एन इकोनॉमी वी ऑल्सो नीड सिविलियन गुड्स और वी कैन से बटर. तो हमें बटर भी प्रोड्यूस करना है, बट जब हम एक बटर प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें गन्स में से वो रिसोर्सेज कम करनी पड़ेंगी, तो गन्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. नाउ वी आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस 9 guns. एंड सपोज वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस इवन मोर बटर, तो हम दो बटर प्रोड्यूस करेंगे तो गन्स और भी प्रोडक्शन गन्स का कम हो जाएगा. नाउ वी आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस 7 guns. वी प्रोड्यूस वन मोर बटर. अब हम 3 बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें गन और भी ज्यादा कम करनी पड़ेगी. इट विल बिकम 4 guns. एंड सपोज वी यूज ऑल आर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस बटर ओनली एंड 0 guns. तो we will be able to produce only 4 butter and 0 guns. Why is this happening? Because the resources in the economy are limited. And what does this table is showing us all the possible combination of two goods that can be produced using all the limited resources and technology that we have in the economy. And ऐसी कोई भी टेबल जो ये possible combinations हमें शो करती है is known as a production possibility set. Production possibility set. What is a production possibility set? It is a table or tabular representation of all the possible possible combinations of two goods that can be produced by an economy using the limited resources or the given resources and technology. Okay. So it is a tabular representation of all the possible combinations of two goods that can be produced using given resources and technology. Okay. So अब हम इसे ट्राई करते हैं कि हम इसे ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं या नहीं. Let's make a graph. This is y-axis, this is x-axis, this is origin or zero. Let's take guns here and butter here. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3.
ओके, अब हमारी टेबल को ही हम सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. When we were producing 10 guns, we were producing 0 butter. So the point will lie here. When we were producing 9 guns, then we were producing only 1 butter. So it will be somewhere here. Then 7 guns and 2 butter. 7 is here and 2 is here. Then 4 guns and 3 butter. This is 4 guns, this is 3 butter, and then all the resources were being used to produce butter only. So 4 butter. And let's join these points. After joining these points, or when we represent this table on this graph, ये जो line बनी है, is this is our PPC curve or production possibility curve. So what is a PPC then? It is a graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. ठीक है, ये हमें सारे combinations दिखा रहा है that we can produce using the given resources and technology. Now, what were the assumptions that we are making in making this production possibility curve? Number one assumption is only two goods in the economy are produced. ठीक है, क्योंकि हम x और y एक्सिस ही ले रहे हैं, हम लिमिटेड ही, वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट एनी मोर. तो हम सिर्फ सिंपली दो ही हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर आर ओनली टू गुड्स इन द इकोनॉमी, सिर्फ दो ही गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है. हमारे केस में दैट इज गन्स एंड बटर. Then resources are efficiently used. Yes, all the resources in the economy are efficiently used. Efficiently used means there is no wastage of resources, and the all the factors of production are working at their optimum level. Okay, factors of production, we all know the inputs that are used for production in any economy, and all the inputs, all the resources in our economy are categorized into four factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship or entrepreneur. Land represents all the natural resources. Okay, that is our agricultural land, forest land, climate, weather, solar energy, wind energy. Okay, and all minerals, coal, and everything that we get from the nature free of cost, and it is limited in nature. All the natural resources are our land. Labor is all the physical and mental efforts done by humans, that is our physical labor, mental labor, and semi-skilled labor, unskilled labor, and skilled labor. Okay, then our capital. Capital के अंदर क्या है? Capital represents capital represents all the man-made resources that we have in the economy, like our machine tools, equipments, and our infrastructure, roads, telecom network, and this power plant network, electricity network that we have. All the man-made resources that we have, which helps in further production, is our capital. Then what is entrepreneurship? Entrepreneurship is or entrepreneur is the one who uses all these other factors of production and creates a product. He is the one who takes the risk and uses all these three factors of production to finally produce something, produce a commodity. So factors of production भी हमें clear है. So सारे what we were saying कि resources are efficiently used and only two goods are produced in the economy. So we know all these resources are efficiently used in their best optimum manner in producing these two goods. Then technology remains constant. Yes, we are working at present technology. Technology में कोई भी change नहीं आया है, जिससे हमने शुरू किया था वही same technology use हो रही है. Then resources are not equally efficient in production of all the goods. What does this mean? इसका मतलब है कि जब
सारी रिसोर्सेज जो गन को प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट हैं, क्या वही सेम रिसोर्सेज विल बी इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बटर? नो, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी गन प्रोडक्शन में लग रही थी वो अलग है, जो लोगों के पास स्किल्स, जो हमारी लेबर की स्किल्स गन प्रोडक्शन में लग रही थी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ बटर. सो इसके कारण जब हम रिसोर्सेज का ट्रांसफर करते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ एफिशिएंसी और देयर इज गोइंग टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं एक यूज से सेकेंड यूज के अंदर. द रिसोर्सेज वी हैव the resources we have are not equally efficient to produce all the goods. इसी के कारण जो हमारा बटर का जब हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन फ्रॉम 0 to 1, द गन का प्रोडक्शन हमारा फॉल हो रहा है 10 से 9. ये यहाँ पे 1 से जब 2 हो रहा है तो इट इज फॉलिंग इवन विद अ बिगर वैल्यू. ये 9 से 7 हो जाता है एंड जब ये 3 हो रहा है तो इवन एट अ हायर रेट दैट इज 7 से 4. सो in order to produce more of butter, we are sacrificing the units of gun because the resources are not equally efficient to produce all the goods. ये तो हमारा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आई होप इट इज क्लियर. तो अब हम इसको एक बार वापस से बना के देखते हैं. ये हमारा पीपीसी था, ये ऐसे बन रहा था. यहाँ पे हमारी गन्स थी, यहाँ पे हमारा बटर था. ओके, तो जब हम हमारी रिसोर्सेज, बट आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हमारा कब ऐसे डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों कर रहा है? वाई इट इज नॉट लाइक दिस और नॉट लाइक दिस? ऐसे ऐसे क्यों नहीं बन पा रहा है ये कर्व? क्यों ऐसे ही नीचे की तरफ ही जा रहा है? इट इज बिकॉज the curve is downward sloping because in order to produce more of one good we have to reduce the production of another. As in our case, in order to produce more of butter we have to reduce the production of guns, and this sacrifice of guns in order to produce butter is known as opportunity cost. Opportunity cost. Let's quickly look at what opportunity cost is. It is the cost of second best alternative foregone. Alternative that we have foregone. This is opportunity cost. Let's take an example to understand this. Suppose you only have 20,000 rupees with you and you want to purchase an LED TV or you and a laptop. Since your resources are limited, you can either purchase LED TV or you can purchase a laptop. You decide to choose to buy a laptop. Now what you are forgiving? You are not able to buy LED TV anymore. So what is the opportunity cost of buying this laptop? Is the cost of LED TV. Okay, you are letting go of your purchase of LED TV in order to purchase the laptop. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लैपटॉप को लेने की हुई योर एलईडी टीवी की कॉस्ट बिकॉज इट इज द कॉस्ट दैट यू लेट गो ऑफ. आई होप इट इज क्लियर. तो हमारे इकोनॉमी वाले एग्जाम्पल में, गन्स बटर वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज सैक्रिफाइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. देन लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स. ये हमारा वही सेम टेबल था जो हमने ऊपर बनाया था. तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ए where economy decides to produce only guns and zero butter. Then this is the possibility B and possibility C, D and E. Okay. अब हमारे पास में दो, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हुई है. दैट इज अ मार्जिनल MOC and an MRT. So what are these terms? आइए इन्हें समझते हैं. Number one is marginal MOC stands for marginal opportunity cost. Opportunity cost तो हमने समझ ली कि it is the cost of second best alternative foregone, or in order to produce more of one you have to sacrifice the production of another commodity. ठीक है, तो जब हम एक 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 पॉसिबिलिटी पे कितना सेक्रीफाइस हमने किया है जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज द cost of in order to produce more of in order to produce one more unit of butter, the
units of guns we are sacrificing is my marginal opportunity कॉस्ट. इट मीन्स कि जब मैं ये एक बटर को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितनी गन्स का सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कितनी गन्स का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर रही हूँ, इज माई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये हर पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं. सी, पहले वाले के अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले कोई है ही नहीं जिससे मैंने कम किया होगा या लूज किया होगा. तो फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, बी से समझते हैं. सी, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड एज सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस हमने कितना यूनिट्स का किया है? सैक्रिफाइस अपॉन गेन. ये हम यूनिट्स में ही बात कर रहे हैं. देयर इज नो एसआई यूनिट ऑफ इट. ठीक है, सिर्फ ऐसे नॉर्मली हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं इसको. तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना हुआ है? 1 यूनिट का. अपॉन हमने गेन कितना किया है? 1 यूनिट. 10 माइनस 9 इज 1 एंड 0 प्लस 0 1 माइनस 0 इज 1. तो एमओसी भी हमारा 1 हुआ. बट आप पूछोगे कि यहाँ पे मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये नेगेटिव वैल्यू है. ओके, ये भी चलो माइनस भी रख लेते हैं हम एक बारी के लिए. आंसर विल बी -1. यहाँ पर अब हमने कितना सेक्रीफाइस किया है? 9 में से 2 -2. एंड यहाँ पे गेन कितना हुआ है? अगेन +1. आंसर विल बी -2. देन ये 7 में से 4 -3. गेन हुआ +1. देन यहाँ पर 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ है एंड गेन 1 यूनिट का हुआ है अगेन. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कि एक फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बटर वी आर द अमाउंट ऑफ बटर गन्स वी आर सेक्रीफाइसिंग इज माई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फर्स्ट केस में है वो -1, सेकेंड में -2, थर्ड में -3 एंड फोर्थ में -4. अब ये माइनस क्यों है? माइनस इज जस्ट शोइंग दैट कि यहाँ पर सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा है कंपेयर टू द गेन. ओके, यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग था हमारा कर्व, हमने जो यहाँ पे कर्व बनाया था, इसका ये स्लोप डाउनवर्ड, ये क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसी के कारण वो वैल्यू हमेशा हमारी नेगेटिव आएगी. व्हाट इज नेगेटिव रिलेशनशिप? मतलब कि इन ऑर्डर टू गेन मोर ऑफ वन वी हैव टू सेक्रीफाइस द अदर. अगर हम दोनों, मैं बटर गेन करते वक्त गन्स को भी गेन ही कर पाती तो हमारा रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाता. तो हमारा कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता रादर देन डाउनवर्ड स्लोपिंग, वैसे नीचे की तरफ नहीं आ रहा होता. तो दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गन्स एंड बटर, प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर, इज द रीजन कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं. एंड इन इकोनॉमिक्स वी जनरली इग्नोर दीज वैल्यूज. तो आपको हर बार ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें समझ में आ गया. ओके, देन एक और टर्म लिखी हुई है दैट इज मार्जिन एमआरटी. एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर. इट मीन्स the rate at which resources are transferred from one good to another. Rate at which resources are transferred from one good to another. क्योंकि हमें पता है हमारी रिसोर्सेस, हमने देखो अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. तो इसके कारण क्या होता है, जब हम रिसोर्सेस को एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हैं, एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के प्रोडक्शन में ट्रांसफर करते हैं, तो देयर इज अ लॉस. तो वो लॉस तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बट वो किस रेट पे ट्रांसफर करनी पड़ रही है, कितनी ज्यादा हर बार रिसोर्स हमें ट्रांसफर करनी पड़ रही है in production of more and more of other good is the marginal rate of transfer. उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको भी सिंपली एमओसी की तरह ही कैलकुलेट करते हैं. जैसे इट विल बी, यहाँ पर कितना हुआ रेट, ये भी ऐसे ही होगा कि चेंज इन सैक्रिफाइस. ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को मैथ्स में डेल्टा कहते हैं. तो चेंज इज शोन बाय दिस ट्राइंगल. चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन रिसोर्सेज सैक्रिफाइस एंड चेंज इन रिसोर्सेज गेन. तो गेन हमारे बटर में होंगी और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? गन. तो मैं इसको रेज कर देती हूँ क्योंकि जगह कम है. तो हाउ मच विल इट बी? तो ये होने वाला है हमारा, हमने एक रिसोर्स गन से सैक्रिफाइस की 10 - 9 1, एंड एक रिसोर्सेज हमारी
बटर ने गेन की। देन यहाँ पे कितनी रिसोर्सेज हुई, 2 रिसोर्सेज इसने सेक्रीफाइस की एंड 1 बटर ने गेन की फिर से। देन यहाँ पे 3 गन्स ने सेक्रीफाइस की एंड 1 बटर ने गेन की। 4 रिसोर्सेज यहाँ पे गन्स से सेक्रीफाइस की हमने एंड is 1 is gained by the production of butter. I hope both these concepts are clear. अब हम देखते हैं इसमें एक और क्या चीज हो रही है, दैट द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर इज इंक्रीजिंग, कि जिस रेट पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इट इज इंक्रीजिंग। पहले 1 था, 1:1 था, फिर 2:1 हुआ, फिर 3:1 हुआ, देन 4:1 हुआ। सो ये इंक्रीज हो रहा है। सो इस इंक्रीज के कारण क्या हो रहा है, दिस दिस आर पीपीसी कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण, कि हमें वो ट्रांसफर करनी पड़ रही थी। ओके उसके कारण ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट ये इस ही शेप में क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो जाता। या फिर ये आई एम यूजिंग द रेड पेन, ये ऐसे क्यों नहीं है, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है। द रीजन हियर इज द एमआरटी, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर। इंक्रीजिंग एमआरटी इज द रीजन कि ये ऐसे है। आइए देखते हैं। Yes, the marginal rate of transfer is increasing. This is the reason कि हमारा MOC जो PPC है, it is downward sloping in the shape of a concave. It is a concave shape of curve. ये इस शेप को हम कहते हैं कॉनकेव। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। एमआरटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट व्हेन वी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। इसीलिए जब वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती हैं तो उनकी रेट ऑफ ट्रांसफर हमें हर बार ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, नंबर 1 कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। हमें पता है क्यों, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर गुड। कॉन्केव शेप क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर। रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हमें एक से दूसरे रिसोर्स के अंदर शिफ्ट करनी पड़ रही है। वाई कैंट इट बी स्ट्रेट और कॉन्वेक्स, अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा, सी अगर ये स्ट्रेट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हर बार एमआरटी 1:1 है, 1:1। ओके, मतलब इक्वल रेट पर ही ट्रांसफर हो रहा है। बट वी नो रिसोर्सेज तो इतनी एफिशिएंट होती ही नहीं है कि जब हम उन्हें एक से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो वो प्रॉपरली, जैसे जो वो इसको हम सिंपली अगर समझे तो जो टेक्नोलॉजी, जो 4 लोग, मैं सपोज 4 लोग मिलके मेरी गन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 4 लोग मिलके एक गन को प्रोड्यूस करते हैं। पर जब मैं इन्हीं 4 लोगों को बोलूंगी कि अब आपको गन्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, यू हैव टू प्रोड्यूस बटर, तो अब इसको यहाँ से यहाँ लेके आने में मुझे, वो डायरेक्टली तो उनको आता नहीं है बटर कैसे बनाते हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ओके, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो उतनी एफिशिएंटली जरूरी नहीं है ना कि वो 4 लोग मिलके एक गन बना पा रहे थे तो वो चारों के चारों मिलके यहाँ पे एक बटर भी बना लेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि 5 लोग मिलके एक बटर बना पाए, राइट। बिकॉज एंड जो ट्रेनिंग के कारण यहाँ पे रिसोर्स का लॉस हुआ है, टाइम भी हुआ ना, हमारा टाइम भी गया, ट्रेनिंग भी गई, कुछ लोग एक्स्ट्रा आएंगे जो इनको ट्रेन करेंगे, तो वो लोग डायरेक्टली गन या बटर बना सकते थे, बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन ट्रेनिंग देम। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है। सो दिस शोज कि हमारी रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स टुगेदर इक्वली। ठीक है, तो इसी के कारण अगर ये स्ट्रेट होता तो ऐसा होता है कि 4 लोग उतनी ही एफिशिएंसी से गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और वही 4 लोग उतनी ही एफिशिएंसी से बटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट इज नॉट द रियलिटी। इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, राइट। रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, रेट ऑफ ट्रांसफर हमेशा सेम नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स, ये कर्व हमारा ऐसा क्यों नहीं है, वाई पीपीसी इज नॉट अ कॉन्वेक्स कर्व। अगर ये शेप होता है तो उसे हम कॉन्वेक्स शेप कहते हैं। PPAC is not convex because MRT is not falling. MRT is marginal rate of transfer is not falling. अगर MRT फॉल करेगा तो उसका क्या मतलब हुआ कि रिसोर्सेज आर इवन मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग द सेकेंड गुड। ठीक है, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉस की जगह गेन हो रहा है रिसोर्सेज का, बट इट इज नॉट पॉसिबल ना। जिन 4 लोगों को सिर्फ गन बनानी आती है, जब मैं उसको बटर के प्रोडक्शन पे उनको शिफ्ट करूंगी तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एज एफिशिएंट एज देयर अर्लियर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके कारण एमआरटी कैन नॉट फॉल। ओके, तो
इसलिए दिस कर्व कैन नॉट बी कॉन्वेक्स, इट कैन ओनली बी कॉन्वेक्स इन शेप। कॉन्वेक्स क्यों होगा? बिकॉज व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, देयर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन द रिसोर्सेज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। क्योंकि अब हमें पीपीसी अच्छे से समझ में आ गया, हमने समझ लिया कि इट इज ग्राफ विच शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब हम थोड़ी सी एक दो चीजें और देखते हैं पीपीसी के बारे में। देर आर समथिंग कॉल्ड अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन पीपीसी। पहले समझते हैं अटेनेबल क्या होता है। सो ये जो पॉइंट्स हमारे थे, जो हमारे कॉम्बिनेशंस पीपीसी के ऊपर शो हो रहे थे, लाइक ए बी सी डी ई, जैसे हमारे उसके अंदर था, ये था 10:0, इट वॉज 9:2, 9:1, and it was 7:2, okay, and it was 4:3, and it was 0:4। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन था ये। एक्स एक्सेस को पहले शो करते तो इनको उल्टा कर लेना, ओके। तो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन थे। तो जो भी कॉम्बिनेशंस ऑन द पीपीसी शो हो रहे हैं, ऑन द पीपीसी मतलब कि जो हमारे कॉम्बिनेशंस हमने बनाए थे, जो इस ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन है हमारी वाइट वाली, जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, इसके ऊपर जो लाइन शो हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑन द पीपीसी एंड दीज आर अटेनेबल बिकॉज इकोनॉमी अगर अपने सारी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है तो दीज पॉइंट्स दे कैन अटेन इट। देन व्हाट इज द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी? ये जो पॉइंट एफ है, पॉइंट एफ इज ऑल्सो अटेनेबल। क्यों? क्योंकि हमारी रिसोर्सेज थी। अब मैं ये पॉइंट भी तो बना ही सकती हूँ ना, कि जिसके अंदर मैं कम गन्स और कम बटर प्रोड्यूस कर रही हूँ। बट इस पॉइंट की और सी, पॉइंट एफ और पॉइंट सी में क्या डिफरेंस है? पॉइंट एफ में ये प्रॉब्लम है कि इट इज लाइंग इनसाइड माई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, माई इनसाइड माई पीपीसी। इट इज शोइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, under utilization of resources। पॉइंट ऑन पीपीसी एक और चीज शो करता है कि द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमने अभी पढ़ा था, ये अजम्पशन है पीपीसी का कि रिसोर्सेज आर fully and efficiently utilized. What is it showing in another terms? कि it is showing the possibility of the economy, कि economy में पूरा potential of the economy, पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी इट इज शोइंग कि इकोनॉमी अपने कंप्लीट पोटेंशियल में कितना अचीव कर सकती है। बट क्या इकोनॉमीज इन रियल लाइफ हमेशा अपना पोटेंशियल अचीव करती है? क्या हम लोगों से भी, हम अपने आप से भी देखें तो क्या हम हमेशा हमारा पोटेंशियल 100% अचीव कर पाते हैं? देयर माइट बी सम लैगिंग, राइट? तो ये जो पॉइंट एफ है, ये जनरली रियलिटी शो करता है कि इट इज द पॉइंट विच शोज कि व्हाट द इकोनॉमी इज एट, कि इकोनॉमी की जनरली रियल कंडीशन शो करता है। ये शो करता है कि देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। व्हाट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? सपोज हर इकोनॉमी में समहाउ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना? कोई भी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं चलती है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ पोवर्टी ऑल्सो इन द इकोनॉमी। इसी के कारण क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेज। हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण हम हमारा पीपीसी का जो पॉइंट है, हम हमारा पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। all the economies, all the developing economies are considered to be operating with inside the PPC, and all the developed economies in the world like US, UK, France, Australia, ये सब जो developed economies हैं, we assume them to be operating near the PPC or sometimes on the PPC also। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। बिकॉज वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। दे आर लाइक नियर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो अपने रिसोर्सेज का, इसलिए दे आर ऑपरेटिंग नियर द पीपीसी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ऑल ऑफ देयर रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, इसलिए दे लाई इनसाइड द पीपीसी। और जब वो कोई अच्छे प्रोग्राम्स भी करते हैं, जैसे इंडिया भी जब हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है और पोवर्टी कम होती है, तो उन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं? वी मूव टूवर्ड्स द पीपीसी। हम हमारे पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए वी मूव फ्रॉम इनसाइड द पीपीसी टूवर्ड्स द पॉइंट ऑन द पीपीसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर अटेनेबल, मतलब ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि हम पूरा पीपीसी पे अटेन कर जाए
और हम इन अनसाइड तो हम जनरली उसके लाई करते ही हैं. सो देर इज ऑल्सो अ पॉइंट कॉल्ड आउटसाइड द पीपीसी. हमारे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दिस पॉइंट जी इज पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, कि ये हमारे ए बी सी डी जो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए थे उनसे बाहर ही लाई करता है. सो इज इट अटेनेबल फॉर एन इकोनॉमी? क्या हमारे पास, हमने तो सारी गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज कर ली थी और सब अपने बेस्ट फॉर्म में यूज की, तब भी हम इस पॉइंट को नहीं अचीव कर पाए. सो दिस पॉइंट इज अनअटेनेबल फॉर द इकोनॉमी. इकोनॉमी इसको अटेन ही नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस जो हमारी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो ही बढ़ जाए, कोई एक नई रिसोर्स निकल के आए या फिर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हम और भी ज़्यादा यूज़ कर पाए, तो ही हम इस पॉइंट को अचीव कर पाएंगे. तो हमारा पीपीसी ही सरक जाएगा. बट इन द गिवन एग्जाम्पल, इन द गिवन पीपीसी, अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी इज एन अनअटेनेबल पॉइंट. वी कैन नॉट अटेन द this point outside the PPC. I hope this is clear. अब हमने देख लिया कि पीपीसी क्या होता है, पीपीसी कैसी चीजें हैं, पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी, सब देख लिया. बट क्या अब हमारा पीपीसी चेंज भी कर सकता है क्या? अब हम देखते हैं उसे कि इज इट पॉसिबल और नॉट. तो ये था हमारा पीपीसी. कैन इट शिफ्ट? व्हाट डज शिफ्ट मीन्स? शिफ्ट मीन्स कि पीपीसी यहाँ से था, अब ये ऐसे ऐसे we have a new PPC. In what conditions this PPC can shift? There are two conditions only. Number one, the resources increase. कि ऐसा कुछ हो जाए कि नई रिसोर्स मिल जाए मेरी कंट्री को, कहीं से नई रिसोर्स मिल जाए. पहले मुझे कोई मिनरल के रिजर्व्स नहीं पता थे हमारी कंट्री के अंदर, एंड अभी रिसेंट कोई डिस्कवरी हो जाए एकदम से कि अब हमारे पास इतना सारा लिथियम है. लिथियम इज लाइक, लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, राइट? और आजकल हम ईवी यूज कर रहे हैं, ग्रीन ग्रीन इकोनॉमी और सारे सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ चल रहे हैं. तो लिथियम आयन बैटरी इज अ गुड रिसोर्स, राइट? तो अगर हमें पता चल जाए कि देर आर मोर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, नई रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से रिसोर्सेज बढ़ जाती हैं, देन आर पीपीसी में शिफ्ट टू द राइट. राइटवर्ड शिफ्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव मतलब ये शो करता है कि देर इज इंक्रीज इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ रही हैं. एंड अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट is a negative shift. मतलब it shows there is a failure in, मतलब the resources are getting reduced. ओके हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है इकोनॉमी का. तो पीपीसी उस समय पे कहाँ शिफ्ट करता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है. ठीक है, तो कौन सी दो कंडीशंस थी जिसमें पीपीसी कैन शिफ्ट इधर राइट और लेफ्ट? राइट शिफ्ट होने के लिए क्या होगा? या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए. और भी टेक्नोलॉजी एडवांस होने से क्या होता है, जैसे एआई इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी, तो एआई इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थी उनकी वर्किंग कैपेसिटी, उनकी आउटपुट कैपेसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है. तो उस वजह से पीपीसी इज गोइंग टू शिफ्ट राइटवर्ड्स. और लेफ्टवर्ड्स भी कैसे शिफ्ट होगा? सपोज अभी वॉर चल रहा था, गॉड फॉरबिड, बट अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो सारे, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब सच में फोड़ दिया जाता है, तो उस समय जैसे हिरोशिमा नागासाकी के लिए हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो उस समय क्या हुआ था, जापान की सारी रिसोर्सेज, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थी वो भी डिप्लीट हो गई थी, वो भी कम हो गई थी. सब सारी रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. तो देयर पीपीसी शिफ्टेड टू द लेफ्ट. ओके, फिर इसी, सो रिसोर्सेज का जब नेगेटिव शिफ्ट होता है तो पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. पोटेंशियल लोगों का, पूरी इकोनॉमी का पोटेंशियल गिर जाता है एंड द पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट. आई होप दिस इज क्लियर. शिफ्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी. व्हाट इज रोटेशन ऑफ पीपीसी? हमने देखा था हमारी इकोनॉमी में पीपीसी पे हम सिर्फ दो ही गुड्स शो करते हैं, गन्स एंड बटर. दो गुड्स हैं. अगर सिर्फ ऐसा कुछ हुआ कि जो बटर के प्रोडक्शन की रिसोर्सेज थी वो इंक्रीज हो जाती हैं, गन्स की प्रोडक्शन की रिसोर्सेज नहीं, या फिर कोई जनरल रिसोर्स इंक्रीज नहीं हुई है जिससे दोनों को बेनिफिट होगा, बट सिर्फ एक के प्रोडक्शन की रिसोर्सेज ही इंक्रीज हो जाती हैं, देन माय पीपीसी इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी थी बटर की ही इंक्रीज हुई है वो, ना कि गन्स की. गन्स की रिमेन द सेम.
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पीपीसी इज गोइंग टू रोटेट। और अगर ये पॉजिटिव चेंज है, जैसे टेक्नोलॉजी बटर प्रोडक्शन के अंदर जो चर्निंग होती है, वो सब चीज़ों जो हम दूध को बॉईल करके उसको चर्न करते हैं, वो सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारा पीपीसी इज गोइंग टू रोटेट। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों की बटर की प्रोडक्शन की रिसोर्सेज खत्म हो जाती हैं, हमारी गायों को कुछ दिक्कत हो जाती है, जो भी जिसकी मदद से हम बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो पीपीसी इज गोइंग टू रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऐसे ही पीपीसी एक और तरीके से भी तो रोटेट कर सकता है, क्योंकि सिर्फ गन्स की रिसोर्सेज भी तो इम्प्रूव हो सकती हैं, और बटर की एज इट इज रहे तो बटर एंड गन, तो पीपीसी कैन ऑल्सो रोटेट लाइक दिस। ओके, इन दिस केस गन्स के फेवर में पीपीसी रोटेट कर रहा है। एंड ऐसा कुछ होता है कि गन्स के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कम हो जाती है, या वहाँ की रिसोर्सेज खराब हो जाती हैं, तो उसके केस में क्या होगा, इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। ठीक है, आई होप shift and rotation of PPC is clear to everyone. Now, the last concept and a very important application of PPC जो अभी हम और अच्छे से समझते हैं। हमें पता है इकोनॉमी की 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम के अंदर वी नो हम क्या देखते हैं, वी हैव टू चूज व्हाट good to produce, right? What commodity, that is what commodity to produce and in what quantity, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। तो क्या हम इस चीज को हमारे पीपीसी पे शो कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। और इसी प्रॉब्लम को हमारा पीपीसी बहुत अच्छे तरीके से शो करता है। कैसे शो करता है पीपीसी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से? नंबर वन, इट शोज द डिफरेंट पॉइंट्स, it shows the different points or different ways of allocation of resources between the two goods to be produced। यही तो बता रहे हैं कि हमें अगर ये 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सपोज गन एंड बटर, तो हम उसको कितने अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिस्पेक्टिव क्वांटिटी भी हम बताते हैं कि क्या वो 10 और 0 और 10 है, यहाँ पर हमने बताया था कि ये 1 और 9 है, यहाँ पे ये 7 और 2 है, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम ये क्वांटिटी भी साथ में बता रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि व्हाट कमोडिटी वी वांट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस को हम पीपीसी पे शो कर सकते हैं। यस, इट इज शोइंग, बिकॉज इट इज शोइंग अस allocation ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द टू गुड्स दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। देन हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या थी, कि इट इज अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, दैट इज यूजिंग वेदर वी वांट टू प्रोड्यूस यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और capital intensive technology, that is we want to use more labor or more capital। तो how to produce की प्रॉब्लम को क्या ये शो कर सकता है? yes, ये एग्जैक्टली ये तो नहीं शो कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं, बट इट कैन शो कि वेदर द रिसोर्सेज, लेबर एंड कैपिटल बोथ आर रिसोर्सेज, राइट? तो वेदर दीज रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। ओके, सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, दैट इज ए बी सी डी ई, all the points on the PPC show that the resources are efficiently utilized, and all the points inside the PPC, that is H, point H is showing that the resources are underutilized. We are not efficiently utilizing the resources. We are wasting the resources. Labor or capital is being wasted. Okay, तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को भी वो पार्शली शो कर पा रहा है। फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे थे? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है इकोनॉमी में, उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, दैट इज फॉर रिच और पुअर। पीपीसी कैन नॉट एग्जैक्टली शो this problem of for whom to produce, but it can give you a rough idea about the distribution। कैसे रफ आइडिया देता है वो? सपोज ये हमारा पीपीसी है, लेट्स टेक लग्जरी गुड्स ऑन वाई एक्सिस and necessity goods on x axis। नेसेसिटी गुड्स में क्या आएंगे? हमारा फूड, वाटर, मेडिसिन, एवरीथिंग, जो बेसिक नेसेसिटी जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जो सभी लोगों को चाहिए होती है। व्हाट इज लग्जरी? लाइक जो लग्जरी कार्स हैं हमारा, एंड लाइक प्राइवेट जेट्स एंड एवरीथिंग, सो दिस इज लग्जरी आइटम्स। सो अगर दिस
let's take a point A and point B. This is point, sorry, A and this is point B. तो point A क्या show कर रहा है? Point A is showing it is near luxury, right? We are producing more of luxury goods and less of necessity goods. Point A is showing this. ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज भी ले लें तो यू विल गेट अ मोर आइडिया ऑफ इट. 2 4 6 8 10. ठीक है, तो वी आर प्रोड्यूसिंग 8 ऑफ लग्जरी गुड्स एंड 1 and so 2 4 6 8 and 10. ठीक है, एंड वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग 4 ऑफ नेसेसिटी गुड्स. तो इसका मतलब क्या है कि द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स कौन कंज्यूम कर सकता है? ओनली रिच पीपल. नेसेसिटी गुड्स कौन कंज्यूम कर सकता है? एवरीबडी, एंड स्पेशली दीज आर मेंट फॉर पुअर, राइट? सभी कंज्यूम कर सकते हैं इसको, बट पुअर सिर्फ इसी को अफोर्ड कर सकते हैं. दे कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी गुड्स. तो पॉइंट ए इज शोइंग more of unequal distribution of income, unequal distribution, because it is showing that the economy is producing more of luxury goods. And a luxury goods सिर्फ rich ही afford कर सकते हैं. And then point B is showing is just opposite. Point B is showing that the economy is producing more of necessity goods, 8 of necessity goods and 4 of luxury goods only. So this is showing more equal डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों की नीड्स हम फुलफिल कर रहे हैं. नेसेसिटी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि सारे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं. एंड इकोनॉमी के अंदर इनकम इनइक्वालिटी कंपैरेटिवली कम है. आई होप we have covered everything of this topic and you have understood it very well. So this is it for our concept of production possibility curve. It is, and one last thing, that production possibility curve has also other names. It is also known as PPF, that is production possibility frontier. It is also known as transformation curve. Transformation, एक second, transformation curve, and that's it. Okay, so these are the other names of production possibility curve.